देश की सर्वोच्च अदालत सवालों के कटघरे में है। वजह है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल से लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की और सवाल किए कि क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है वो न्यायपालिका को सवालों के घेरे में ले सकते हैं। क्या धनखड़ नहीं जानते हैं कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। ये तमाम बातें कपिल सिब्बल से लेकर ओवैसी से लेकर तमाम नेताओं के जरिए की गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान का समर्थन किया है। यानी जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर जो तमाम बातें कही हैं उसका वो समर्थन कर रहे हैं। पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अजय रस्तोगी, उनका बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए राष्ट्रपति को मजबूर करना बिल्कुल सही नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को समय सीमा पर दिशा निर्देश देने से बचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि संविधान में चूंकि समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मेरे विचार में समय सीमा पर निर्देश देने से बचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और उन्होंने कहा कि इससे बचा जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 142 आपको माननीय राष्ट्रपति को अधिकृत करने का अधिकार नहीं देता है। तो क्या कुछ सबसे पहले सुनिए जस्टिस अजय रस्तोगी कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर और उनके क्या विचार है अनुच्छेद 142 को लेकर, जरा सुनिए। आई थिंक सो फार एज द judgment of the Supreme Court is concerned, that is their wisdom while interpreting say, Article 200 and 201. But that's true that there is no time-bound schedule available. Request to Honorable the Governor or Honorable the President, if so, to decide the matters as expeditiously possible. And mandating within a timeline which the Constitution does not take care of should have been avoided if possible. And so far as 142, Article 142 is concerned, that is only to do complete justice between the parties inter se. But giving timelines for disposal of matters pending is not, to my understanding, is a 42 article. Comments are concerned, to my understanding, are very personal. I'm not supposed to say so either way. But to my understanding, we all have to introspect ourselves, because we all are equally responsible and accountable to see that the mandate of Constitution must be upheld and rule of law on whose shoulders it has been today must see that in upholding the rule of law we must discharge our official obligations as being casted by the Constitution. My only request is that, as I said about introspection, if something remains pending for a long time in the office of the governor, with the Constitution never taken care of, the framers always thought that let the authorities to whom official obligations have been casted upon must discharge their duties expeditiously. And that is what Article 200 also postulates. If somebody is not discharging his duty, and at that point of time some comments are made, I don't say whether it is justified, not justified, but I'll always say it should have been avoided.
And self introspection, to my understanding, is the best recourse which is expected from everyone to follow. But sir, how do you see this remark made by the Vice President of holding a high office of the country, calling Supreme Court That is his personal comments. I don't want to say. Everybody examine the authorities' function in their own way. It is Honorable Vice President as his personal view, which he has put before the public. Let public may examine it. But sir, isn't clearly showing the rift between the government and the judiciary after this remark? No, I don't think there is any rift. I don't think. And there should not be any rift. Judiciary is discharging its duties. Executive is discharging their own duties. So I don't think there is any rift of any kind. तो आपने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रस्तोगी को सुना, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि दरअसल राष्ट्रपति को इस तरीके से समय सीमा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता। और जैसा कि तमाम लोग जो हैं वो अनुच्छेद 142 का हवाला दे रहे हैं, जो तमाम वकील हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो तमाम विपक्ष के नेता हो, ये दरअसल अनुच्छेद 142 आपको माननीय राष्ट्रपति को अधिकृत करने का अधिकार नहीं देता है। ये साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की टिप्पणी है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि हाल ही में जिस तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन जिस तरीके का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहा, यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। वक्फ कानून का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सवाल न्यायपालिका पर उठाए और जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि जो अनुच्छेद 142 है, दरअसल उसका परमाणु मिसाइल की तरह सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को आखिर समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा, क्या यही है न्यायपालिका का न्याय। तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए और जिस पर जब जस्टिस रस्तोगी से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल धनखड़ के अपने विचार हैं और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये भी उनके जरिए कहा गया। तो यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर लगातार जो है वो बयानबाजी का दौर जारी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले की आलोचना की, जिसमें राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। कई सवाल उपराष्ट्रपति ने उठाए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रस्तोगी ने उपराष्ट्रपति के इस बयान का समर्थन करते हुए ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है 142 अनुच्छेद के मुताबिक भी कि वो राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करे। अब देखना होगा कि आखिर पूर्व जस्टिस का जो ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से वो उपराष्ट्रपति के बयान का समर्थन कर रहे हैं, उस पर अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आने वाले वक्त में विपक्ष की तरफ से देखने को मिलती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।